Hello everyone, am I audible? Yes, you're audible. Okay. Guys, please feel free to ask me your doubts first. I have given you these exercises 8.1 and 8.2 as a homework. So, did you solve them? You must have faced some of the problems. Oh, no problem. Just 1 minute. Yeah, please. Feel free to ask your doubts, anyone. I mean, other than Tharif also. If you have doubts, please feel free to ask. I mean, we will only be solving questions if you had doubt. Just Otherwise, 1 minute. yeah, sure, sure. Sorry. Otherwise, I mean, you first solve these questions, then you will face difficulties in some of the questions, and then we will discuss them accordingly. We will start a new chapter in that case. Yes, sir. And this is for doubts. Yes. So in question 7 of 8.1 only I'm having doubts, sir. Other also solved. 8.1 question 7 and others are solved. Yes, sir. Okay, cool. Sorry, sir. 8.2 question 4 also, sir. Give me a minute. Okay, 8.17 is find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equals to a square cut off by the line x is equals to a by root 2. Cool. Okay, Tharif has first in 8.1. Chalo, let's start from the beginning only. So question number exercise 8.1. Now the first doubt is question number 1. So question number 1 is find the area of the region bounded by the curve y square is equals to x. Okay, so these are the curves that are given to us. One curve is y square is equals to x and the line x is equals to 1, x is equals to 4 and x-axis. We need to find out area bounded by curve y square is equals to x, then lines x is equals to 1, x is equals to 4 and the x-axis in the first quadrant. Okay, cool. So the first thing is let's make these graphs. X is equals to y square. We know how does x is equals to y square look like. Okay, so I mean rather than this, we should take this graph only. Okay, and so we know that x is equals to y square. This is the curve x is equals to y square, right? Then there is a line x is equals to 1. Another line is x is equals to 4 and x-axis, right? So can somebody tell me what is the equation of line x is equals to 1?
Sir, perpendicular to y-axis. Sorry, parallel, sir. Yes, sorry. Somebody told me the answer. The line parallel to axis. Line parallel to y-axis, correct. So x is equals to 1 means that x will always be 1. So this is the point x is equals to 1. This is a point x is equals to 4, right? Now, if I want x is equals to 1, then I have to draw a line on which looks like this. See, on the whole line, x is 1. And similarly, if I want x is equals to 4, then this would be the line. Right? So x is equals to 1, x is equals to 4 are these lines, and I need to find out the area between these lines, x-axis and y square is equals to x in first quadrant. That means that I want this area first of all. You can see that this is the area bounded by y square on the upper side. The upper boundary is made by the curve x is equals to y square. The right boundary is made by x is equals to 4. The left boundary is x is equals to 1. And the lower boundary is x-axis. And this is the area that lies in first quadrant between all of these curves. So first thing is, what area do we need to find out? This is the area that we need to find out. Just give me a minute. Yeah. So this is the area that we need to find out. This is the first step, right? Kharif, did you understand this? Yes, sir. Okay. Now, to find out this area, we need to figure out under which curve this area lies. Can you tell me that? Under which curve this area is lying down? Right side. No. Buddy, see, this whole area is lying down under this. No, this path. Yes, sir, yes. So what is this curve? X curve. X is equals to y square. This is the curve, Yes. right? Now Yes, we sir. can convert this as y is equals to root x, if I'm not wrong. Yes, sir. Yes. So we need to actually integrate this curve from x is equals to 1, this point, to this point to get this area, right? So area of shaded portion will be area or required area. You can also write this. Required area is the integration of the function root x from 1 to 4. This is the required area. Now you integrate this, you will get your answer. So Tharif, we always have to look out for the curve under which the area is lying. तो अभी मेरे को ये जो एरिया निकालना था ये x is equals to y square के अंदर है. तो I will integrate that curve. हमेशा यही देखना है. जो भी एरिया है, under which curve that area is lying. Right? And now we'll be easily able to find out this. Your doubt was Tharif, question number 7. Oh, sorry, Shavis. Yes. Okay. Let's start with question 7. Question 7 is find the area of the smaller part of the circle. Okay. Area of smaller part of smaller part of circle, area of smaller part of circle, x square plus y square
Yes, so area of smaller part of circle x square plus y square is equals to a square, cut off by the line x is equals to a by root 2. Yeah, right. So again, first let's draw the figure. So we know that there is a circle given to us, right? Which is x square plus y square is equals to a square. A here is constant, right? So a here is constant, and let's say this is the circle that we are talking about right now. And let's say this is the line x is equals to a by root 2. Now the first problem is, where is x is equals to, I mean, what is the smaller portion? Okay, let's first understand the question. क्या मैं बोल रहा हूँ पहले वो समझो. X is equals to a by root 2 will be a line parallel to y-axis, right? Now this line can be anywhere. Either it can be here, right? Either it can be here. We don't know where it is, correct? But this is a line parallel to y-axis Yes, that we know. And so the only doubt is that which is the smaller portion. So for that, first consider this point. Do you know this point? We do know this point, right? This is the end Yes, point sir. of diameter. So this can be a comma 0. A comma 0. Now we have to just consider कि a by root 2 0 से a के बीच में कहां पे आ रहा होगा. अब मुझे ये बता, a by 2 बिल्कुल मिडिल होगा ना इसका, यहाँ पे कहीं a by 2 होगा, right? Which will be the middle of this Yes, line, sir. 0 to a. A by root 2 is smaller than a by 2 or greater than a by 2? Greater. Sorry, Greater than 1 by 2. greater than 1 by 2, a by 2, right? So a by root 2 will be somewhere after this point. So this should be somewhere here. यार कब से सही नहीं बन रही है लाइन, क्या बात है भाई. A by 2 will be somewhere here after this a by 2. I mean a by root 2 will be after this a by 2. How do I know this? How do we know this? See, a by 2 It's is greater than A greater by than 2. a by 3, right? Why? Because here we are dividing it by 3 and here we are dividing it by 2. So as the denominator increases, the value of the fraction decreases. If you have the same numerator, then the greater denominator term will be smaller. I mean 1 by 2 or 1 by 3. You can compare this. So similarly, 1 by root 2. Now root 2 is smaller than 2 because root 2 is 1.414. That is why a by root 2 must be greater than a by 2. A by 2 बिल्कुल middle में point होगा, तो a by root 2 should be somewhere here, right? And now we can easily see that which is the smaller portion. This is the smaller portion. We need to find out this area from this point a by root 2 to a. बस सब तो हो ही जाएगा. Area of shaded portion. Area of shaded portion. Because the figure is symmetrical, we can write twice and we can only find out the area from the first quadrant. And then the area lying in fourth quadrant will be just same as the area lying in first quadrant because the figure is symmetrical. So area of shaded portion will be twice, and this will be integration of y. Integration of y would be a square minus x square whole root dx from x is equals to a by root 2 to x is equals to a. Chavez, did you understand this? Yes, sir. Cool.
And another problem was 8.2, question number 4. 4. Yes, that should be a problem. तो चलो आज हमें यही दो, as I said in the last class that we need to discuss 2 or 3 more varieties of the questions. So this is one of them. Now in these cases we will be given vertices. So there are two questions on the same, I mean the concept is same, but these questions can be asked in two ways, either fourth and fifth, either fourth or fifth. So we are going to understand fourth and then you guys try to solve fifth one. Okay. If not, if you're not able to solve it, please feel free to ask. So in question number 4, you have to find out area using integration find area of triangular region, but find area of triangle made by the vertices -1, 0, then 1, 3, and 3, 2. So these are 3 points given to us. First of all, I should locate these 3 points. Where are these points going to lie? For that, let's draw a graph first, and then here we can locate these points. This point will be -1, 0. See, so let's call this point as A, this point as B, and this point as C. So this is A, right? Now let's plot B. B would be 1 and somewhere here 3. So let's say this is B, and then C would be X is 3, Y is 2. Somewhere here. If I join them, these points will be right. These are 3 points A, B, and C. This B is 1, 3, C is 3, 2, and then A is -1, 0. Now, one way to find out the area is using the formula directly. We know how to find out the area of a triangle if all the vertices are given, right? But we don't need to use that formula, and rather than that, we have to use integration to find out the area of triangle. Now, how do we find out area using integration? We try to locate the curve. Whatever area we need to find out, we try to locate under which curve that area is lying, and we integrate that curve. Correct? Now, first of all, my required portion, my shaded portion for which I need to find out the area is this. Correct? Now, I'm going to break this whole portion like this. Focus on this. ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एक सेकंड में इसको भी हटा रहा हूं. Oh, sorry. I'm also removing this.
and I'm just drawing perpendiculars from B and C. Okay. Yeah. तो यहाँ पे देखो मैंने B और C दोनों से एक एक परपेंडिकुलर डाला. परपेंडिकुलर क्यों डाल रहा हूँ? फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू हैव द फील ऑफ व्हाट आर वी डूइंग. ठीक है. ये देखो, ये A और B लाइन के नीचे जो पूरा एरिया है, ये पूरा ये सारा एरिया है. ये देखो. हाँ सॉरी. If I see this area, this whole area lies under AB, correct? And this whole area Sir. lies under BC. And this area, okay, I'm going to actually, मैंने इसको अलग अलग कलर से शेप करता हूं. देखो AC के नीचे जो एरिया है वो ये वाला है. ठीक है. AB के नीचे जो एरिया है वो ये वाला है पूरा. और BC के नीचे जो एरिया है वो ये वाला है. करेक्ट. अगर मैं AB के नीचे वाला एरिया निकालूं प्लस BC के नीचे वाला एरिया निकालूं तो मेरे को ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा. बट मुझे पूरा एरिया नहीं चाहिए. मुझे आई जस्ट नीड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC. So what I will do is I will first find out the area under AB plus area under BC and then I will subtract the area under AC. अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मेरे को रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं मिल जाएगा शाविज? Yes, sir. You'll get. तो बस हम यही करेंगे इस क्वेश्चन में. ऐसा ही फिफ्थ क्वेश्चन भी है. फिफ्थ में तुम्हें डायरेक्टली लाइंस की इक्वेशन दी हुई है. वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे हमें पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इनके वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे. यहां पे मुझे पहले लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो आई नीड बोथ थिंग्स. आई नीड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑल्सो. आई नीड दिस वर्टिसेस ऑल्सो. करेक्ट. नाउ इन दिस केस AB, let's try to solve first of all these equations. What is the equation of AB? So an equation of a line can be written as y minus y1, equation of a line. If we know 2 points, na? If we know that there are 2 points through which the line is passing, equation of a line, though this is important guys, because I think if you left straight line in class 11th, then you may not know this. So this is important. Why? Because this is basically telling you equation of a line passing through 2 points, x1, y1 and x2, y2. ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y minus y1 divided by x minus x1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is how you write an equation of a line when it is given that the line is passing through these 2 points. So we know the line AB is passing through A and B, the line BC is passing through B and C, and the line AC is passing through A and C. So we know that every line that we want here is passing through 2 points, right? So I can write the equation of lines. Let's write the equation of AB first. तो AB की इक्वेशन होगी y minus 3 divided by x minus 1. You can take any point x1, y1 and the other will be x2, y2. You can take any one. Don't worry. I am taking this. So y minus 3 divided by x minus 1 is equals to y2 minus y1 x2 minus x1. After solving this, you will get the line, equation of line. So this will be 3, 2y minus x is equals to 3x minus 3. Yeah. So the Sir, equation of line here would you be, can take in any order. हाँ बिल्कुल, you can take it any order.
The equation of line can be written like this. Y is equals to 3 by 2x plus 3 by 2. Similarly, I can write the equation of BC also. Similarly, I can write the equation of AC also. So let's write the equation of BC. So I'm writing this, you guys try to figure out. So this is the line, equation of BC, and similarly we can find out the equation of AC also. So for AC, so these are the equations of AB, BC, and AC. Just applying this formula, you will also get them. Please try to solve them yourself, because there are high chances that a question will come from this. Okay, and now to find out the required area would be area under AB plus area under BC minus area under AC. That is how you can find out the required area. Now area under AB first. To find out area under AB, we need to integrate this 3 by 2x plus 3 by 2 from the point -1 to 1. Because see, the x coordinate ranges from A to B, that is -1 to 1. Plus, then we need to find out from 1 to, I guess, 3. And this will be minus of x by 2 plus of 7 by 2 into dx, and then minus -1 to 3 x by 2 plus half. If you find this out, you will get your required area. So the calculations are not tough. You just need to know the concept, how to find out the area of a triangle when vertices are given. And it can also occur vice versa, that the lines are given and you have to find out the area. In that case, you will find first intersection point, that is vertices of the triangle, and then we will similarly integrate and either add or subtract.
हाँ जी, please feel free to ask me your other doubts and if you have problem in this. Cool, Chavez. Now please try to solve 8 point. I mean, after this, you guys should solve miscellaneous exercise. Solve miscellaneous, you will find other problems also. But I want every one of you to try this. I will take the doubts in the next class also. But first of all, try this. Sir. ठीक है, हाँ, yeah, Shavis. Sir, after this, can we start differential equations? Yes, we are going to start differential equation in today's class only. Okay. sir. ठीक है जी, चलिए ये खत्म करके आइएगा नेक्स्ट क्लास तक. You try to finish this miscellaneous exercise, and I am telling you, you will surely face doubts, not concept wise, but related to the previous knowledge. You won't be able to draw some graphs, maybe. Let's try out, I mean, all the questions from miscellaneous exercise. And if you face any problem, please feel free to reach out to me. ठीक है, चलो, let's start with the new chapter now, which is differential equations. चार के दिए हैं. अच्छा, vector, this dimension, linear. Okay, cool. Okay, so differential equation is coming. I mean, no topic is cut off from differential equations. Whatever is given in the NCERT, everything is in the syllabus. That is good, because differential equations, by the way, are a very crucial part of our life. Just similar to matrix. तुम्हें कभी कभी ये लगता होगा कि मैं ऐसे ही ये फर्जी बातें बोलता रहता हूँ ऐसी, है ना, कि अरे इतनी क्या इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन.
मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती तो हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होती लाइफ में ना। फॉर एग्जाम्पल कार, व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं सारे हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन है। अभी व्हीकल्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं है, इंजन में थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व नहीं होंगी, हीट की इक्वेशंस बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व नहीं होंगी। तो पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे दुनिया, हमारी डे टू डे लाइफ का। इनफैक्ट जैसे मैंने मैट्रिसेस में बताया था तुम्हें कि हम कोड नहीं कर पाते, पता नहीं कितने सारे कोड्स हम लिख ही नहीं पाते अगर मैट्रिसेस ना होते। शायद हम इतना, ये जीपीयू आजकल आ गए हैं, हम मेमोरी बढ़ाते जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एक बारी कि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मतलब आई एम डूइंग माई एमटेक इन quality, reliability and operation research, by the way, but most of my subjects are related to mathematics only, and I study a lot about these linear algebra, probability, and then differential equations also. तो एंड बेसिकली मेरा काम तो डेटा साइंस पे है वैसे, आईटी, बट जितना भी हम लोग ये डेटा साइंस पे भी या किसी भी कंप्यूटर पे जितने भी हम काम कर रहे हैं आजकल, वो सब कुछ पॉसिबल ही इसी वजह से हो पाया क्योंकि हमने लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर लिए थे। अगर हम लीनियर अलजेब्रा शायद इतना ना पढ़ पाते तो हम बहुत, हम मतलब ये आज शायद ये जूम क्लास भी ना हुई होती। एंड सिमिलर इज द स्कोप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एज वेल। मतलब देर आर कंपनीज, कॉलेज में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अभी तो प्लेसमेंट्स खत्म हो गए हैं, मतलब प्लेसमेंट सीजन इज ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, but there's a company Nvidia, and you must guys have heard about Nvidia, by the way. Nvidia के ग्राफिक कार्ड होते हैं। Nvidia सुना है किसी ने नाम Nvidia का? अच्छा, Sir, शायद, like some years ago I heard, sir. सॉरी शायद, Sir, I don't remember that much. हाँ नहीं नहीं, रिमेम्बर की तो कोई बात नहीं है, बट Nvidia का ग्राफिक कार्ड तो सबने सुना होगा। हर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है। गेम्स खेलते हो? मैं तो बहुत खेलता हूँ गेम्स। मतलब मैं तो यार गेमर हूँ, बचपन से गेम्स खेलता हूँ। तो बचपन में यही प्रॉब्लम आती थी कि मतलब जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो स्टोरेज ही नहीं होती है हमारे पास इतनी। मतलब हम गेम्स कैसे खेलें, लैपटॉप में कैसे गेम खेलें। इनफैक्ट आज तो बहुत स्टोरेज है। अगर तुम बात करो व्हेन वी गाइज, मतलब व्हेन यू गाइज वर बोर्न और व्हेन आई वाज बोर्न, मैं भी तुमसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैक्सिमम 5 to 7 years गैप होगा हम लोगों में। तो मतलब अर्ली 2000s या फिर लेट 90s की अगर हम बात करें तो इस इस टाइम पे ना स्टोरेज नहीं हुआ करती थी। मतलब कॉलेज में पीसीज हुआ करते थे, पर्सनल कंप्यूटर्स, और इसमें हमें स्टोरेज मिलती थी ऐसे कुछ, मतलब क्या बताऊं, जीबीज में तो स्टोरेज होती ही नहीं थी पहली बात। 512 MB स्टोरेज होती थी ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स की भी, इन द ईयर अराउंड 2000 और 1990s। मतलब 1990 से 2005 तक हम लोगों ने काफी स्टोरेज पे काम करा, बट स्टोरेज नहीं होती थी उतनी। एनवीडिया यही करती है। एनवीडिया इज अ, आई मीन वेरी रिनाउंड कंपनी। एनवीडिया का काम यही है, वो आपको ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज। तो आज जो हम जीपीयू पे पहुंच गए ना, अगर आपको पता हो किसी को, सीपीयू हम लोग यूज करते थे, बट जीपीयू Yes, होते हैं sir. जो और ज्यादा, जिसके अंदर स्टोरेज होती है, जो और फास्ट वर्क कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ स्टोरेज। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्टोरेज एज वेल एज अ लॉट ऑफ स्पीड टू। तो एनवीडिया नाउ, मतलब ओके, आई टुक द नेम, बट ठीक है, आई शुडंट हैव टोल्ड यू द नेम, बट या एनवीडिया मतलब जो काम करती है, आपको तुम्हें पता है यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, और प्लेसमेंट में ना वो हमसे कुछ नहीं पूछते अदर देन मैथ्स। वो कोई आईटी नहीं पूछेंगे हमसे, कोई सॉफ्टवेयर की कोई चीज नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, नो अदर सब्जेक्ट देन मैथ्स। और काम क्या है उनका? सिर्फ वो स्टोरेज पे काम करते हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शनिंग ऑफ एनवीडिया, कि वो लोग स्टोरेज बढ़ाने पे काम करते हैं, वो लोग ग्राफिक कार्ड पे काम करते हैं, राइट। और वो हमसे पूछते क्या है? सिर्फ मैथ्स। एंड बिलीव मी, सिर्फ मैथ्स। देयर वर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, राइट, 5 sections, 4 question per section. There were 20 questions and very good questions and all related to maths. कौन कौन से टॉपिक्स? पीएनसी,
मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब पूछते हैं वो। तो अगर मैं ऐसे सोचे हम लोग, तो वो हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? मतलब उन्हें हमसे पूछने चाहिए थे कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे काम करते हैं, है ना। बट जितना भी कंप्यूटर डिजाइन है ना, उसके पीछे ये सब लग रहा है, पूरा मैथ्स ही है। और एक्चुअली वो पूरा मैथ्स पे ही इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू राउंड होते हैं, दोनों मैथ्स टेस्ट होता है, पूरा मैथ्स। दे विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन अदर देन मैथ्स। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब देखो, लोग काम कर रहे हैं इन्हीं चीजों पे जो हम पढ़ते हैं। तो सिमिलर इज द same is the application of differential equations also. If any one of you opt for engineering na, you will see the application of differential equations. There are a lot of fields in which differential equations is applied. तो पहली चीज तो ये कि ये यार काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम बहुत छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक पूरा ओशन है अपने आप में, बहुत बड़ा। देयर आर lot of topics in differential equations, and as I said, people are still researching about solving differential equations. तो हम सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कर पा रहे हैं, जो सबसे बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि आप लोगों का तो ये इंट्रोडक्शन ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, देन हाउ टू सॉल्व इट, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एंड देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। तो यार अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहां पे भी हमारे पास डेरिवेटिव्स यूज हो एक इक्वेशन के अंदर, अगर डेरिवेटिव्स भी यूज हो रहे हैं और कुछ फंक्शन भी यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूं। लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया dy by dx इज इक्वल्स टू x। अब आप यहां पे देख सकते हो एक डेरिवेटिव वाली टर्म भी यूज हो रही है। डेरिवेटिव वाली टर्म से मेरा मतलब हमेशा ये रहेगा dy by dx हो सकता है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इट कैन बी, मतलब there can be any independent or dependent variable. I am not saying that it will always be dy by dx. It can be dx by dy, it can be dt by dx, it can be d theta by dx. But what am I saying is one variable will be, I mean, we would be writing derivative of one variable with respect to another with some equation. So for example, dy by dx is a differential, dy by dx is equals to x is a differential equation. For example, d2y by dx square, in fact, I'm not going to write y, I will write t. Now in this case, t and x are variable and we are calculating second derivative of t with respect to x. हमें t और x के बारे में कुछ पता नहीं है अभी, हमें नहीं पता क्या है ये t और x, बस हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, है ना। और ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी एक इक्वेशन के इक्वल हो सकता है। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या एक से ज्यादा डेरिवेटिव वाली टर्म भी हो सकती है? बिल्कुल, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ अगर हम कोई इक्वेशन को लिख दें, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ अगर हम कोई इक्वेशन को लिख दें, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। करेक्ट। अब ऐसा जरूरी नहीं है इक्वेशन के अंदर कुछ हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने आप में, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इनफैक्ट। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हैं, डेरिवेटिव वाली टर्म होगी और कुछ ना कुछ और भी कुछ दिया होगा। ऐसी कोई भी इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पे कोई
डेरिवेटिव वाली टर्म भी हो, है ना, और कोई इक्वेशन मतलब कोई और टर्म्स भी हो, हर कोई ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या इक्वेशन क्या होती थी, चलो ऐसे छोटी सी, पहले इससे पहले थोड़ी और बेसिक बात करते हैं। y is equals to mx plus c. Is this a equation? Yes. Equation in two variables. Correct? What is an equation? Equation is something in which there is a left hand side, there is a right hand side, and there is an equality exists among the left hand side and right hand side. Equation is something in which there is a expression on the left hand side, there is an expression on the right hand side, and there is a sign of equality among them. जब भी साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा उसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी डेरिवेटिव के साथ साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा तब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन तो ये है, अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। तो अगर मैं इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो फॉर्मल डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से दे सकता हूं। An equation involving derivative or derivatives, we are not saying कि एक ही डेरिवेटिव होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, एक होना चाहिए बट मिनिमम, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जैसे कि इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है t, इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, यहाँ पे y, यहाँ पे भी थीटा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to an independent variable or variables is called a differential equation. Correct? Now, अगर मेरे पास as I said कि मैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिखता हूं और कोई इक्वेशन लिखता हूं उसमें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। बट अगर मैं एक ही वेरिएबल यूज करता हूं, if only one independent variable is used, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ना डी लिखूंगा यार। हम पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर वी विल यूज द वर्ड डी, डिफरेंशियल इक्वेशन, टू राइट differential equation. Okay, if only one independent variable is used, such d is called ordinary differential equation। कहना क्या चाहते हैं हम इस बात से? देखो यार, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसे लिख देता, एक बार मैंने थीटा का डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार मैंने थीटा का डिफरेंशिएशन करा वाई के रिस्पेक्ट में। नाउ इन दिस केस वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको हम ये हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में आती है ना, जहां पे हम इसके बारे में और पढ़ रहे होंगे। और इन ऐसी इक्वेशंस को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, बाय द वे पीडी, और इनको हम ओडी बोलते हैं।
दिस इज ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बाद में सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत वैरायटीज हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हम तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं हम इनको, है ना। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इसमें भी इनफैक्ट एक बहुत ही छोटा सा टाइप, बस सिर्फ उसी तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे, राइट। तो दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which involves two or more than two independent variables। ठीक है जी। तो right now we are only discussing ordinary differential equation। now how to define ordinary differential equation? बहुत ही इजीली मैं ऐसा कुछ लिख दूं अगर कि dy by dx is equals to gx, है ना, जहां पे ये y आई मीन ये फंक्शन कुछ x की टर्म्स में डिफाइन होगा, और मान लीजिए dy by dx is equals to gx। छोड़ो इसको भी, तो छोड़ो। बट बहुत ही सिंपल सी बात है कि यार हमारे कुछ डेरिवेटिव वाली टर्म होंगी, कुछ सिंपल टर्म होंगी, ऐसी कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जा सकती है ना। अब ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं दो चीजों की, एक ऑर्डर एंड दूसरा डिग्री। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दीज टू थिंग्स। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं, फिर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस भी सब लिख दूंगा। तो पहले एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, अब क्योंकि मेरे पास सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो जनरली मेरे पास जितनी भी हम लोग जनरली नहीं, जितनी भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। दीज आर द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। नाउ लेट्स से आई एम राइटिंग दिस, now this is, first of all you can see that this is an ODE, ordinary differential equation, right, because there are terms of derivatives as well as some basic terms। ठीक बात। अब अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, as soon as I spot a differential equation I can find out order and degree of that differential equation। कैसे जी? ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि भाई देखिए जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म यहां पे यूज हुई है, ठीक है, इसमें आपका हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव्स कितनी बार आया। मतलब इस बात को ध्यान से समझना, पहले मेरी बात सुन लो। इसको देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, मैंने y को दो बार डिफरेंशिएट करा होगा x के रिस्पेक्ट में, है ना, इसीलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। ये वही ऑर्डर है, बस ये जो ऑर्डर है ये वही है। ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि मैंने y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, राइट। मैं ये देखूंगा मेरी पूरी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट टाइम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सॉरी, हाईएस्ट टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना टाइम डिफरेंशिएट करा गया है। जैसे कि यहां पे दो बार डिफरेंशिएट करा गया है, यहां पे एक बार डिफरेंशिएट करा गया है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, देखो इसकी पावर 2 है, भाई ये पावर 2 है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। इसका मतलब है, अच्छा हम इसको बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल से समझ भी सकते हैं अगर आपको कोई इसमें डाउट हो।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख दिया करते थे अगर आपको याद हो, y1 भी लिख दिया करते थे, और dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, सारी बातें एक ही, राइट। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको इस तरीके के सिंबल्स मिले तो कंफ्यूज मत होना, y डैश भी मिल सकता है, y1 भी मिल सकता है। अब लेट्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, बता दो कोई फटाफट। dy बाई डी एक्स क्या है भाई, y अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, टफ है, ऐसा मत किया करो, फटाफट आंसर कर दिया करो। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा 2x आएगा, राइट। इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा 2 आएगा, बट आप यहां पे देख सकते हो dy बाई डी एक्स का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो वो 4x स्क्वायर आएगा, और d2y बाई डी एक्स 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, करेक्ट। तो हाँ जी, फिर से आ जाइए जरा वापस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स a dependent variable is differentiated with respect to independent variable। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको 3 कर देता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर? डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब डिफरेंशिएट करा जाएगा तो जो भी वो नंबर होगा वही हमारा ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y को दो अलग अलग जगह डिफरेंशिएट करा गया है x के रिस्पेक्ट में, पहली बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, दूसरी बार dy बाई डी एक्स लिखा है। तो पहली बार में 2 बार डिफरेंशिएट करा गया y को विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सेकंड टाइम में y को y only got one time differentiated with respect to x. So order of this differential equation is 2. Why? Because 2 is the maximum number of times y is differentiated with respect to x. This in this first term. फिर से एक बार, क्या आप मुझे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर बताएंगे? हाँ जी, what is the order of this differential equation? Order of this differential equation? हाँ सॉरी, 3। 3, करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 2 बार करा है, यहाँ पे 3 बार करा है, यहाँ पे 1 बार करा है, तो बिल्कुल सही बात है जी, ऑर्डर होगा 3। एक बार और बता दो चलो फटाफट से। हाँ जी, क्या है ऑर्डर? एनीवन? 2? नहीं शायद 3 क्यों है भाई, 2 होगा ना। चलो अब एक बार डिग्री भी समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसान है दोनों चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी।
डिग्री क्या है? पावर ऑफ, और सॉरी, मैक्सिमम पावर ऑफ maximum power of highest order derivative maximum power of highest order derivative इनफैक्ट इसको ऐसे लिखो, इन अ डी इफ इट इज डिग्री तो हम जानते हैं यार, पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकाला करते थे अगर याद हो तो। चलो मैं ये बात समझा देता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यार देखो, डिग्री तभी निकाली जा सकती है जब कोई पॉलिनोमियल हो। अगर कोई चीज पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। अब सबसे पहले ये समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जाएगी? जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर क्या यूज हुई है, यहां से डिग्री निकाली जाएगी। ठीक है जी। अब पर जब डिग्री निकालने जाएंगे ना, तो उससे पहले एक बात का ध्यान रखना है। देखो, जैसे जब आप डिग्री निकालने जा रहे हो ना, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब कैसे मुझे पता चलेगा मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ना, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। और सारे के सारे डेरिवेटिव्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस केस को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वाले केस में अगर मैं देखता हूं तो एक मेरा ये है डेरिवेटिव वाला टर्म, एक मेरा डेरिवेटिव वाला टर्म ये है। दोनों की पावर होल नंबर है। यहाँ पे डेरिवेटिव वाले पावर की वो, मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म की पावर है 1, यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म की पावर है 3, राइट? तो ये एक बिल्कुल पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब सेकंड पे आ जाओ जरा इस पे। हाँ जी, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 3 बार टर्म्स यूज हुई हैं और तीनों बार ही पावर्स उसकी होल नंबर। ये भी एक पॉलिनोमियल है जो थर्ड थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्त। ये एक पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन, क्यों? क्योंकि आपने डीवाई बाई डी एक्स को कॉस के अंदर डाल दिया। आपका डीवाई बाई डी एक्स बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ना तो वो ई की पावर में जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो भी सेम रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि ई टू द पावर में हमारे पास डेरिवेटिव है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स आ सकता है, ई टू द पावर एक्स आ सकता है, बट कभी भी डेरिवेटिव इनकी पावर, डेरिवेटिव किसी भी और फंक्शन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इस बात पे खास ख्याल रखना। डेरिवेटिव कभी भी किसी और फंक्शन में नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव हमेशा फ्री होना चाहिए और डेरिवेटिव की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम डिग्री निकाल सकते हैं। चलो जी, अगर ऐसा होता है तो कैसे निकालेंगे डिग्री? तो आप ऊपर वाले ही 3 एग्जाम्पल पे आ जाओ। सबसे पहले तो इस वाले केस में देखते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स में? यस, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव
किसी और फंक्शन के साथ यूज नहीं करा गया है और सारे डेरिवेटिव्स की पावर होल नंबर भी है। ओके, अगर ऐसा है तो हम डिग्री कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले ऑर्डर निकालिए डिग्री निकालने के लिए। ऑर्डर है इसका 2, ठीक है जी। ऑर्डर है अगर 2, तो जो भी सेकंड ऑर्डर वाली टर्म है उनकी सिर्फ हाईएस्ट पावर देखिए। यहां पर सेकंड ऑर्डर वाली टर्म तो एक ही जगह यूज हुई है सिर्फ, तो कोई मतलब ही नहीं है, पावर 1 है, यानी कि डिग्री भी 1 होगी। फिर से सेकंड वाले पे एक बार, फिर थर्ड वाले पे भी करेंगे। इस पे आते हैं। सबसे पहले डिग्री निकालने के लिए क्या करना है? ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकाला, क्या है जी? ऑर्डर 3 है। कौन सी टर्म है 3 वाली? ये वाली टर्म है, ये राइट। अब मैं सिर्फ इसी टर्म की बात करूंगा। इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है? हमने कहा भाई ये तो टर्म ही एक बार यूज हुई है, तो हाईएस्ट पावर क्या? जो भी एक बार पावर यूज करी गई है वही हाईएस्ट पावर है, यानी कि इसकी डिग्री हुई 2। आप देख सकते हैं इसकी पावर 6 थी डीवाई बाई डी एक्स की, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डीवाई बाई डी एक्स की पावर वो चाहे 100 क्यों ना रख दे, मैं सिर्फ डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म से ही निकाल पाऊंगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म की जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो मेरी डिग्री होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस केस में डिग्री क्या है? ऑर्डर क्या था? 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास हाईएस्ट है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार यूज हुआ है? एक बार। क्या पावर है उसकी? 1, तो डिग्री हुई 1। इस केस में क्या बोलेंगे जब पॉलिनोमियल ही नहीं है आपका डी, तब हम बोलेंगे डिग्री डोंट एग्जिस्ट। क्योंकि भाई डिग्री एग्जिस्ट करती तब जब आपका ये पॉलिनोमियल होता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की तो कोई बात ही नहीं है यार, राइट। तो डिग्री कैसे डिफाइन करें भाई लोग? मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डी इफ इट इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। यस, चलो फिर ये बता दो जरा, इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों बताने हैं। हाँ जी, बता दो जरा ऑर्डर और डिग्री क्या है इसकी। सब लोग चैट पे भेज सकते हैं मेरे को। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर इन फर्स्ट केस? ऑर्डर 4 डिग्री 3, वेरी गुड। सबसे पहली चीज, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है जी। ई की पावर में एक्स दिया हुआ है, सिर्फ साइन के साथ सिर्फ वाई दिया हुआ है। डेरिवेटिव्स की पावर हर बार होल नंबर है, वेरी गुड। So in that case, I can say that this given differential equation
इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल सकता हूं मैं। अगर ये पॉलिनोमियल ना होती डेरिवेटिव्स में तो मैं पहले ट्राई करता कि बन पाएगी कि नहीं। नहीं बन पाती तो फिर मैं कुछ नहीं करता। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर माने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है। ये देखो ये वाली टर्म है 4, और एक ही बार यूज हुई है, तो जो भी इसकी पावर है वही डिग्री है। हाँ जी, इस वाले केस में बताओ जरा क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है। सबसे पहली चीज तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। ये देखो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। इस डिनोमिनेटर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बन जाएगी 4। आप बताइए ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अभी तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही हो गया है, तो बताओ। करेक्ट है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 4 है, क्या दिक्कत है। ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म। हाँ जी, क्या ऑर्डर क्या डिग्री। ये लास्ट क्वेश्चन है बस। इसी में मैं आपको एक दो वेरिएशन और करवाना चाहूंगा, और इसी से ही हम सारा काम कर लेंगे। आपको अलग अलग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बट मैं इसी में ही कर लूंगा। हाँ जी, व्हाट इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है 2, एंड डिग्री इज 4। वाई क्यों भाई। यही तो है टर्म इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट। इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इनका तो छेड़ चेक ही नहीं करना। बट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दो जगह यूज हुआ है, एक जगह पावर 1 है एक जगह पावर 3 है, तो डिग्री होना चाहिए 3 ना कि 4। हाँ जी, अगर मैं इसमें ये कर दूं। अभी क्या है जी, ऑर्डर एंड डिग्री। आपको नया क्वेश्चन लिखना होगा ये।
ऑर्डर इज 3 degrees 2 करेक्ट भैया। ये है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म d3y/dx3। इससे बड़ा ऑर्डर किसी का नहीं है, तो ऑर्डर हुआ 3। और ये कितनी बार यूज हुआ है? सिर्फ एक बार। तो जो भी इसकी पावर है वही डिग्री है। अगर एक से ज्यादा बार यूज होता तब मैं बड़े वाली पावर उठाता। करेक्ट बात है। चलो फिर अभी आज के लिए 9.1 एक्सरसाइज भी थोड़ा स्टार्ट करना, ट्राई करना। बहुत इजी है, तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी मुश्किल से, 5 से 10 मिनट मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज प्लस ये वाली एक्सरसाइज खत्म करके आ। ओके गाइस, चलो बाय बाय।